हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12वीं पॉलिटिकल साइंस सिक्योरिटी इन अ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कक्षा 12वीं का जो राजनीति शास्त्र का हमारे समक्ष चैप्टर आया है, समकालीन विश्व में सुरक्षा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन को उठाएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से। ये जो क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में यहाँ समझाया जाएगा और आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी, हिंदी भी दिखेंगे इंग्लिश भी दिखेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। इसमें हम विस्तार पर चर्चा करेंगे, हर एक पहलू को एनालाइज करेंगे और समझेंगे हर एक छोटी बातों को जो अब तक आप नहीं समझ पाए थे। तो ये सब तब होगा जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we discussion most important chapter here, security in a contemporary world. Class 12 CBSE NCERT here. There is a political science. Next point arrive here, that's important. The point here, security strategy of India. You know that's important. Security strategy of India. India's security strategy depend on the four-bodied component here. You know that Indian security strategy depend on a four-bodied components here, and four components here stands as military capability in the first component of India as a security strategy, as an Indian has been involved in a conflict with it is another word. That's important. You know that first component here or strengthening military capability here. Strengthening of military capability is the first component of security strategy of India. And second here, the second component of India is security strategy to the strength international norm and international institution to protect its security interest. That's important here. The second here strategy, there is the international norms and international institution to protect its security interest here. The next here, the third important component of India as a security strategy is to be respond to the security challenge within the country. You know that is important third component of your security strategy here. The respond to security challenge within the country. The fourth component is to be develop our economics in such a way that the vast majority of citizens are left out to the poverty and miseries. This is important. There is a fourth component here. There is a fourth component of Indian as a security strategy here. The economics is such a way that the vast majority of citizens are left out of poverty and misery. That's important. It's to control the acquisitions of arms, and it called for giving up of content types of weapons to be avoid mass destruction. A process is which the different countries share ideas and information with the rival countries by the informing each other about their military plan. That's important. A process in which the different countries share ideas and information with their
rival country by informing each other about their military plans. And it's referred to be a country suffering from a low income and low economical development to be classified as a least developed or developing countries. That's important. It's referred to be a country suffering from a low income and low economics development to be classified as the least developed to the developing countries. It is a movement of human resources from one state to another due to some special reason. That's important point here for the exam view. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। समकालीन विश्व में सुरक्षा, क्लास 12वीं, CBSE NCERT, राजनीतिक विज्ञान। और हमारा अगला और अंतिम पॉइंट जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हमारा पॉइंट यहाँ ये बताता है कि भारत की सुरक्षा रणनीति। देखिए, भारत का क्या सुरक्षा नीति रही है। समकालीन विश्व में सुरक्षा के अंतर्गत चैप्टर है। अब इसमें पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात रहता है कि भारत की सुरक्षा रणनीति क्या है विश्व के समक्ष। तो भारतीय सुरक्षा रणनीति के 4 व्यापक घटकों पर निर्भर करता है। यानी देखा जाए तो 4 यहाँ पर कंपोनेंट है जिसके अंतर्गत भारतीय सुरक्षा की रणनीति यहाँ पर नज़र आती है। और ये 4 रणनीति काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला रणनीति यही कहती है कि सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना, और भारत की सुरक्षा रणनीति का पहला घटक है कि सैन्य क्षमताओं को क्या करना है, मजबूत करना है। अगर हम सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर ले तो ये भारत की सुरक्षा रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए देखा जाए तो सैन्य क्षमताओं को जो है मजबूत करना किसी भी देश की सुरक्षा रणनीति के अंतर्गत आता है और सभी देशों के प्रथम आवश्यकता है। भारत अपने पड़ोसियों के साथ संघर्ष में शामिल रहा है, और भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से अपने पड़ोसी देशों का सामना हमेशा करता ही आ रहा है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर ज़रूरत है कि सैन्य क्षमताओं को जो है भारत सरकार मजबूत से मजबूत करे, जिससे पड़ोसी देशों से संघर्ष में ये सशक्ति के साथ कार्य करे। दूसरे पॉइंट की तरफ अगर नज़र करें, कहते हैं भारत की सुरक्षा रणनीति का दूसरा घटक अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए है। कहते हैं जब तक आप स्वयं सुरक्षित नहीं रहोगे, दूसरा का सुरक्षा नहीं जो है सुनिश्चित नहीं कर पाओगे। और ये दूसरा घटक बताता है कि सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। क्योंकि सुरक्षा के सत्र में मान लीजिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानदंड और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ही काम आती है। अगर कोई बात बनती है तो इन क्षेत्रों को मजबूत करना भी सरकार की रणनीतियों में से महत्वपूर्ण मानी जा सकती है कि भारत सरकार जो है इसकी सुरक्षा रणनीति का जो है मजबूती से पालन करे और अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने की कोशिश किया जाए। ये हमारा दूसरा कंपोनेंट थी। देखा जाए तो भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा महत्वपूर्ण घटक देश के भीतर सुरक्षा चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होना। देखिए, कहते हैं बाहरी खतरा तो हमें सदैव लगी रहती है और बाहरी लोगों से जो है हमें खतरे में बचा भी जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा मुसीबत तो हमें अपनों से पड़ती है, क्योंकि सुरक्षा का सबसे बड़ा चुनौती जो होती है हमारे अपने ही होते हैं। क्योंकि सुरक्षा चुनौती का सामना करना पड़ता है हमारे देश के भीतर ही। इतने तरह की रणनीति होती रहती, राजनीति की जाती है, जैसे हमारा देश सदैव ही खतरों में पड़ी रहती है। आए दिन देखा जाए तो सांप्रदायिक दंगा फसाद भारत में होना एक आम बात हो गई है। राजनीतिक नेताओं के अपनी सिक्का चलाने के लिए हर तरह के जो है प्रयास करते हैं और हर तरह से लोगों को जो है प्रताड़ना भी देती हैं। तो तीसरा घटक जो है भीतरी सुरक्षा की चुनौती के ऊपर ध्यान देने के लिए केंद्रित किया गया है। चौथी घटक देखा जाए तो चौथी घटक अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से विकसित करना है कि नागरिक का विशाल जनसमूह गरीबी दुख से बाहर निकल जाए। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। चौथी घटक जो यहाँ ली गई है काफ़ी महत्व रखता है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, यानी जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है उस देश में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं रहती है
और भारत को चाहिए कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। और भारत की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत हो पाएगी जब हम कृषि को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश कहलाता है और भारत कृषि पर ही निर्भर है। हमारे पास जो है मिनरलों की कमी है, तो हमें जो है इन चीज़ों के क्षेत्रों में ना जाके कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिए। कृषि हमारे देश में अगर रॉ मटेरियल उत्पादन करता है तो पूरा विश्व के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है और सारे देश जो है भारत की तरफ नज़र भी नहीं उठा सकेंगे और सबको जो है ज़रूरतों को पूरा भारत से हो सकती है। इसलिए भारत को चाहिए कि जितना हो सके कृषि पर ध्यान दिया जाए और कृषि पर ध्यान देने के कारण जो होगा गरीबी की और के दुखों से बाहर निकला जा सकता है और इससे हमारा अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा। तो ये चौथी घटक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमें अर्थव्यवस्था को विकसित करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। कहते हैं ये हथियार के अधिग्रहण को भी नियंत्रित करती है। हमें जो है हथियारों को भी अधिग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमारे बाहरी खतरे सदैव ही बने रहते हैं और ये सामूहिक विनाश बनाने के लिए यानी सामूहिक विनाश से बचने के लिए कुछ प्रकार के हथियारों को छोड़ देने के लिए भी कहता है। देखा जाए तो भारत इस बात को हमेशा प्रायोरिटी दिया है। कई हथियार जो है खतरनाक है जिससे जनजीवन तहस नहस हो सकती है, उन हथियारों को छोड़ देने की भी वकालत भारत करता है और भारत हमेशा ही परमाणु बम का जो है निशस्त्रीकरण करने पर विश्वास रखता है और हमेशा भारत जो है निशस्त्रीकरण के ऊपर ही अपनी विचारधारा को मजबूत बनाया है और ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है। एक प्रक्रिया जिसमें विभिन्न देश अपने सैन्य योजनाओं के बारे में एक दूसरे से सूचित करके प्रतिद्वंदी देशों के साथ विचार और जानकारी साझा करते हैं, उसमें भी भारत अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि विभिन्न देश अपने सैन्य योजना के बारे में एक दूसरे देशों के साथ युद्ध भी करने के अभ्यास करते हैं और युद्ध का प्रशिक्षण भी लेते हैं और प्रतिद्वंदी देश के विचार और जानकारी भी साझा करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है। यह एक देश को कम आय और कम आर्थिक विकास की पीड़ित होने के लिए संदर्भ करता है, जिसे कम से कम विकसित या विकासशील देशों के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए। तो देखा जाए तो विकसित और विकासशील, विकसित वो देश जो अपनी पूरी तरह से खुद पे सक्षम है और विकासशील जो दूसरे देशों पर आज भी अपनी निगाहें जो है बरकरार रखे हुए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहती है। यह कुछ विशेष कारणों से एक राज्य के दूसरे राज्यों में मानव संसाधनों की आवाजाही भी सुनिश्चित करेगा। देखिए ये बात काफ़ी महत्व रखता है कि विशेष कारणों से एक राज्य दूसरे राज्यों में मानव संसाधनों की आवाजाही भी जरूरी होता है। इससे देश की जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है, बनी रहती है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहती है। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो पॉइंटों की सिलसिला थी यहीं पर रुक जाती है। इस पूरे ही पॉइंट जो है आपके पूरे सिलेबस को कवर करता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना चाहिए, देखना चाहिए, लिखना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण है। और तिरपान स्टडी सेंटर ये विश्वास दिलाता है कि इन सभी पॉइंटों को अगर आप कर लेते हो तो एग्जामिनर इन पॉइंटों से अधिक कुछ भी नहीं दे सकता है और ये विश्वास नहीं, यकीन है, ठीक है। और ये बाद में आप भी कहिएगा, इसलिए सोचिए नहीं, सभी पॉइंटों को नोट कीजिए, सभी पॉइंटों को समझिए, बार बार समझिएगा तो ज़रूर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये विश्वास है। और मुझे विश्वास ये भी है कि ये वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा, जितने हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप ही एक माध्यम हो, क्योंकि आप भी उसी क्लास में पढ़ते हो, आपके दोस्त मित्र भी उसी क्लास में पढ़ते हैं और आपके पास उनका व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, आपसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। यूट्यूब से लिंक को कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। जिनको देखना होगा, जिनको समझ में आएगा वो रखेंगे, जिनको समझ में नहीं आएगा वो इग्नोर करेंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए। अगर आप किसी कोई वीडियो देखते हो, समझते हो, तो जनरल सी बात थोड़ा सा आपका भी वहाँ पर जो थोड़ा सा फ़र्ज़ बन जाता है कि ये वीडियो दूसरे बच्चों तक भी जाना चाहिए। क्या पता, कहते किया हुआ भलाई कभी भी खराब नहीं जाता है, वो कोई ना कोई रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हो ही जाता है। इसलिए शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर करने से दूसरे बच्चों का केयर होता है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इस तरह प्राप्त होता रहे, क्योंकि आगे बहुत से वीडियो हैं और पीछे भी बहुत से वीडियो हैं। तो पीछे वाली वीडियो तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म यहाँ तैयार किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है, इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में
सेव कीजिए।